I hope I am audible. Good morning, W beta, खुश रहिए. So I hope that everything is clear and you have been covering the things well. And in case there is any confusion from the last lecture, make sure that you ask those questions. A very good morning, Abhishek. Okay. Last lecture in the sense when we covered this environment and ecology. Okay. I know that there has been a gap, but we'll be looking at one of the important topics today, which is biogeochemical cycle or nutrient cycling. W beta, I'm all good, सब बढ़िया है. I hope that you are also doing well. So the thing that we'll be dealing with is biogeochemical cycle and nutrient cycling. तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी. We had discussed that this is something that is the cyclic movement of the various components which are essential for life. ठीक है. नेचर में कैसे the gases, the minerals, they are circulating throughout. A very good morning, Renu beta. Good morning, Astha. Just give me a moment. There is some issue with the comment segment. Now it looks fine. Okay. Still it has not been taken care of, but it's not a big deal. We'll manage. Okay. So biogeochemical cycle, we had discussed that it is the cycling of the various components. That is the gases, maybe solids, liquids that are essential for life. Essential for life. पर अगर आप देखते हैं तो हर साइकिल कैसी है? It is not same. Okay. Some of the cycles are like what? आपको साथ साथ within the life span, within a shorter period of time, what we see that nutrients are replaced very fast. ठीक है. Some of the nutrients are replaced really fast. Mostly gaseous को अगर आप देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है, साइक्लिंग इजी है, कार्बन साइक्लिंग इजी है. ओके. So most of the gaseous are cycling fast, but if we look at some of the nutrients, okay, which are in sedimentary in nature, जैसे अगर बॉडी को फॉस्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए, okay, so most of such kind of things are coming from some rock. ठीक है. And it is trapped in the body also for a very long period of time. ये क्या है कि शरीर में भी बहुत समय तक रह जाते हैं, तो इनकी साइक्लिंग जल्दी नहीं हो सकती है. Okay, it takes a longer period of time. So one has a perfect cycle and another has a imperfect cycle. Okay, some of the nutrients which are sedimentary in nature, कुछ मिनरल कैसे हैं, वो पानी के साथ मिक्स होके ओशन में चले जाते हैं. They get deposited there. They live there for thousands of years until and unless somebody catches a fish which was dependent on that nutrient, जिसने उस nutrient को यूज किया है. ठीक है. मछली है, कोई क्रैब है, and when people consume that thing, then it comes back to humans, and then maybe some human will die, then it will come to the terrestrial area from where it started. ठीक है. तो जहां से शुरू हुआ है वहां पे वापस लौटने में कुछ चीजों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. Okay, so these are called as the perfect cycles and imperfect cycles. Okay, so there in nutrient cycling we have a concept of perfect and imperfect cycles. Okay, so write down based on the replacement period of a nutrient. Based on the replacement period of a nutrient,
they can be differentiated into perfect cycle. They can be differentiated into perfect cycle and imperfect cycles. They can be differentiated into the perfect cycle and the imperfect cycle. ठीक है, एक perfect cycle है, एक imperfect cycle है. And like I said, इसमें क्या है, mostly gaseous है, mostly gaseous cycles, because this takes relatively less time, and here mostly it is sedimentary cycles, and some of these are important that we need to cover. ठीक है, इनमें से कुछ हम कवर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे बार बार क्वेश्चन आता है. वेरी गुड मॉर्निंग स्पेशल बेटा, आई एम ऑल गुड. आई होप दैट यू आर ऑल्सो एट पिंक ऑफ योर हेल्थ एंड प्रिपेयरिंग वेल. ठीक है, सो एवरीवन सेटल डाउन. जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं वो सारे बच्चे सेटल हो जाइए, नोटबुक लेके तैयार रहिए, बिकॉज द थिंग्स दैट वी आर कवरिंग, दिस इज योर टिकट टू मेंस एंड टू द इंटरव्यू एज वेल. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे ध्यान देंगे. ओके, और कुछ भी मिस मत करिए. नाउ राइट डाउन ए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल. ए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल is a cycle where the nutrients are replaced. A perfect nutrient cycle is a cycle where the nutrients are replaced. Where the nutrients are replaced as fast as they are utilized. As fast as they are utilized. ठीक है, उन्हें हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद वो कुछ समय बाद नेचर में वापस चला जाता है उसी जगह पे. ओके, एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड. ओके, एंड लाइक आई सेड, मोस्टली ये गैसियस साइकिल्स हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड, चेंज द पैरा एंड राइट. ऑन द अदर हैंड, the sedimentary cycles are considered relatively imperfect. On the other hand, the sedimentary cycles are considered relatively imperfect. On the other hand, the sedimentary cycles are considered relatively imperfect. Relatively imperfect, as some of the nutrients are lost. As some of the nutrients are lost from the cycle and get locked in the sediments. As some of the nutrients are lost from the cycle and get locked in the sediments, get locked in the sediments, and hence become unavailable for immediate cycling, and hence become unavailable for immediate cycling. Okay, now बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर. ठीक है, जहां ये रहते हैं. ठीक है, गैस है तो गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री तो मिट्टी में जाके जमा हो रहा है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर, they are called as either gaseous cycles or sedimentary cycles. Or sedimentary cycles. Okay, so now first gaseous cycle. Okay, definition type of question ताकि आ जाए. तो this is mostly concerned with the एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फेयर. हम गैसियस कहते हैं, बट क्या है कि वाटर को भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं. ओके, वाटर वाले पार्ट को भी हम यूज करते हैं इसमें. सो राइट डाउन, द गैसियस साइकिल इज द साइकिल वेयर द रिजर्वायर इज आइदर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. रिजर्वायर इज आइदर एटमॉस्फेयर
or hydrosphere. Okay, and this is something which can come in the definition, जहां पूछेगा कि gaseous cycle is only associated with atmosphere, hydrosphere, both of them. Okay, so these kind of questions are made. Okay, या फिर लिख देगा कि lithosphere भी है, that kind of question. So here the cycle which involves only atmosphere and hydrosphere is considered. Okay, the sedimentary cycle, where earth's surface is the reservoir, is earth's surface. अब अर्थ सरफेस का मतलब सिर्फ जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो नहीं है. ओके, इनसाइड द ओशन, ओशन फ्लोर इज ऑल्सो व्हाट, इट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली. ओके, तो इसको सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं सोचना है, ओशनिक सरफेस इज ऑल्सो अर्थ सरफेस. ओके, सो आई होप दैट एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. और इसमें सबसे पॉपुलर जो है दैट इज hydrologic cycle or water cycle. So we'll start with some of the important cycles. तो पहले gaseous cycles में hydrologic cycle और hydrological cycle, और water cycle. Okay, and this is something that all of you have an idea about it. Tell me how many steps are involved in this thing. किन किन स्टेप्स में ये नेचर में घूम रहा है. ओके, नाउ अगेन देयर इज अ मोमेंट वेयर आई विल डिस्कवर कि हाउ मच यू आर रिवाइजिंग. ठीक है, आप रिविजन्स पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऐसे ही जब टॉपिक पलट के आते हैं तो मुझे पता चलता है. ओके, सो मे बी along with the classes we are having an opportunity to revise because same topics are falling under many heads. Okay, so just tell me, give me a moment. Okay, so tell me, hydrologic cycle or hydrological cycle और water cycle, क्या क्या स्टेजेस थे इसमें. ओके, वाटर कहां से स्टार्ट होता है. दिस इज सरफेस. Okay, here you have some trees. Okay, some grasses, maybe some pond, or maybe a river that is flowing through this area. कोई नदी भी हो सकती है. Okay, and maybe it is going to the ocean. So what are the different steps involved? हाँ, रेणु बेटा, भूमि, 6 steps. Wonderful, wonderful Abhishek. W, great. Okay, so this is something that is, first one is evaporation. Okay, evaporation कौन सी स्टेज है. Water into water vapor. Water vapor. Okay, so this is happening in evaporation and transpiration. Both are water into water vapor. अब ये ऊपर जाएगा तो क्या है, the clouds will form. Okay, and when these clouds are forming, what we call as condensation. Okay, the water molecules condenses. So condensation is water vapor into liquid form. Okay, water vapor into liquid. Thereafter this cloud starts falling down. Water falling to the ground, we call it as precipitation. Okay, water falling to the ground, and when it reaches the surface, okay,
मे बी वॉट इट विल डू, यहां सरफेस पे पहुंचने के बाद ये बारिश जब नीचे आती है, इट विल रन, दिस इज सरफेस रन ऑफ. ओके, इट इज रनिंग ऑन द सरफेस. एंड इफ इट परकुलेट्स डाउन, यही पानी क्या है, जमीन के नीचे जाता है, एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर, दिस इज percolation. Okay, so this is the cycle which is hydrological cycle. Deep, very good everyone. So that is wonderful that most of you remember this thing that we had covered in oceanography. ठीक है, तो यही साइकिल है. फिर नीचे आया, परकुलेट होके क्या है, अगेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इट विल कम टू द सरफेस. सो फ्रॉम एनी वाटर बॉडी again evaporation and the cycle continues. So this is the most basic cycle. Okay, तो ये easiest है and you can write easily based on the diagram only, and most of you have the notes of it. So let's move to the second cycle, that is carbon cycle. Carbon cycle. नाउ हाउ इट वर्क्स. कार्बन साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है. ओके, टेल मी. हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज हैपनिंग. The continuous exchange of carbon between the environment and the humans. Humans नहीं, in any life form. Continuous exchange of carbon between the living and the environment. So the ultimate source of everything that we are made up of, okay, वो कहां से आ रहा है, that is some organic matter, and this organic matter का मतलब ही क्या है, anything which is organic has carbon and hydrogen. Okay, so any life form that is there, plants and everything, okay, so they consume द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं ये, ओके, दिस ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्लांट, व्हाट इट टेक्स, CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दैट इज कमिंग फ्रॉम द वॉल्केनिक, ये अवेलेबल है. ओके, ये CO2 आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम होता है एंड इट फॉर्म्स द ऑर्गेनिक मैटर. ओके, नाउ दिस ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या होता है, इट बिकम्स ए डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट हो या ह्यूमन हो. ओके, नाउ दिस इज अ डेड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, एंड दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर will undergo biodegradation, okay, this is undergoing biodegradation, okay, and when it biodegrades again CO2, okay, but CO2 addition organic matter की अगर हम बात करें, living, okay, so this is organic matter is what, living, so it is not only consuming, सिर्फ plant तो है नहीं, so the respiration also adds to it. हाँ W बेटा, through producer consumer decomposer ही हो रहा है. okay, now when we are talking about this biodegradation, okay, which ultimately leads to CO2, it is living will what,
produce waste material, the fecus, okay, it will also biodegraded, it will get biodegraded, and again CO2. So this is a cycle that is happening in this manner, okay. CO2 is also moving throughout the life, okay. Respiration, हम सांस लेते हैं, okay. We have a direct gaseous exchange. The dead matter, when something becomes dead, whatever you consume, it comes out in the form of fecus, that is a waste material that body doesn't want, it gets biodegraded, and any biodegradation, the bacterial action, CO2 is released, okay. So this is your carbon cycle, okay. लेकिन क्या ये सिर्फ, अभी हमने परफेक्ट साइकिल और इम्परफेक्ट साइकिल की बात की थी, ओके. सो दिस इज पार्ट ऑफ द परफेक्ट साइकिल. बट डू यू थिंक दैट कार्बन इज ओनली पार्ट ऑफ द परफेक्ट साइकिल? जब भी बारिश होता है, when it rains, what happens to this CO2? It becomes carbonic acid, enters the ocean. Maybe it will become calcium carbonate, it will become a rock. So this is, जब भी हम कह रहे थे कि perfect cycle and imperfect cycle, you cannot say that 100% perfect cycle can be there, okay. So अब अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी है, ओके. हमने देखा बायोडिग्रेडेशन, लेकिन यहां से क्या है, इट मूव्स इनटू अनडिकम्पोज्ड organic matter, okay. This undecomposed organic matter can be there, ठीक है. ये क्या फॉर्म लेता है? It becomes insoluble carbonates, because most of the cycles that you make, जहां भी आपको डायग्राम मिलता है, it only shows that it is a perfect cycle, लेकिन you know that not everything can get decomposed. जब सारे डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या होगा, ओके. एंड दिस कार्बोनेट कहां पे बन रहा है? अभी कोरल रीफ जो है पानी के अंदर है, वो कार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ओके. So carbonate is carbon. So this calcium carbonate or magnesium carbonate, it can become part of the sedimentary cycle. This becomes part of sedimentary cycle. That doesn't comes out. That doesn't joins the cycle in less time, okay. So this is imperfect cycle. So part of it is also entering an area where there is an imperfect cycle, okay. Similarly, मैंने क्या कहा, CO2 rains, carbonic acid, certain reactions, it becomes again insoluble carbonates, okay. So some part goes into imperfect cycle. Clear है सबको the carbon cycle? Because most of the people, most of the books show a diagram which is this, but this is not the complete picture of the carbon cycle, ठीक है. Some of the waste material that is there, ठीक है, वो भी क्या है, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट हो सकता है. So some part is always lost, but majority is coming back. So we call it as a perfect cycle,
Okay, it is usually considered as a perfect cycle, but for your understanding, it is important that no cycle is 100% perfect. ठीक है? So write down the carbon from the atmosphere. The carbon from the atmosphere. हाँ पूजा बेटा, बिल्कुल, very good. Okay, write down the carbon from the atmosphere moves to the green plants. The carbon from the atmosphere moves to the green plants by the process of photosynthesis. Moves to the green plants by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. And then to the animals. And then to the animals. By the process of respiration and decomposition. By the process of respiration and decomposition. By the process of respiration and decomposition. It goes back to the atmosphere. It goes back to the atmosphere. Okay, and look, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन गेट मेनी फैंसी डायग्राम्स. ठीक है, आप किताबों में देखेंगे तो यही वाले को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया हुआ मिल जाएगा, बट आपको ज्यादा नंबर क्यों आता है? ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वाई सम ऑफ द पीपल गेट मोर मार्क्स. ओके, वाई सम ऑफ द पीपल आर गिविंग फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू. ठीक है, वो बार बार लिखते हैं, उनको बार बार आ जाता है. द रीजन इज दैट दे आर कैपेबल ऑफ इनोवेशन. ओके, जिससे उनका आंसर अलग दिखने लगता है. एंड दिस इज व्हाट आई यूज टू डू. ओके, बिकॉज मोस्टली मैं जितने लोगों से मिला हूं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है कि किसी की नॉलेज बहुत कम होती है. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड आर एट par with each other, but those who can think a little more, who can make a little difference, they are the people who get more marks. ठीक है, तो यही चीजें आपको हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन देना स्टार्ट करती हैं, एंड अल्टीमेटली यू गेट 20 मार्क्स मोर इन ए सिंगल पेपर. क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना है कि एवरेज 100 है और किसी को 180 आ गए हो? If the average is 100, it means the highest will be around 120. Okay, so those who score more, they only score half or 1 marks more than others, and this thing can impress. ठीक है, तो ये इनोवेशन आपको खुद भी सोच के करना है. इट इज नॉट लाइक कि मैंने जो पढ़ा दिया उसी पे आप रुक गए. ओके, बिकॉज फिर तो आपके लिए टफ होगा, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बैचेस में पढ़ा रहा हूं. ओके, सो यू विल हैव टू ब्रिंग सम new innovations also. Okay, I keep doing this thing so that you can start thinking in that direction. Okay, जो सिर्फ बटोर के और नोटबुक में रख लेंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा. ठीक है, तो आपको थोड़ा सोच के खुद भी certain things you have to do by yourself. Okay, and try to do that thing. ठीक है, ये बुक में अगर मुझे मिला होता तभी मैं कर पाता, तो मैं भी ये नहीं बता रहा होता. This is none of the books. You can try, you can search. Okay, so try to innovate, it will help you. Okay, change the para and write, most part of the carbon cycle is a perfect cycle. Most part of the carbon cycle is a perfect cycle which takes relatively shorter time, which takes relatively shorter time, but some part of the carbon enters the imperfect cycle.
when but some part of the carbon enters the imperfect cycle. Full stop. It accumulates as undecomposed organic matter. It accumulates as undecomposed organic matter in the layers of the soil. In the layers of the soil, such as in carbonates, such as insoluble carbonates, such as insoluble carbonates, or may reach the aquatic ecosystem in the form of a rock, or may reach the aquatic ecosystem in the form of a rock, or may reach the aquatic ecosystem in the form of a rock. Okay, full stop. In the oceans, such carbonate matter, in the oceans, such carbonate matter may remain buried for millions of years, may remain buried for millions of years, and hence the carbon cannot join the cycle. And hence that part of the carbon cannot join the cycle. Okay? अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा कार्बन का क्या है? ऐसा कार्बन जो फंसा हुआ आप जानते हैं, अभी जो पेट्रोलियम, डीजल, गैस, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस, ओके, वो कब से फंसा हुआ है? बिलियंस ऑफ ईयर्स से भी हैं कुछ. ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक इट कैन गेट ट्रैप्ड. ओके, so you can mention this thing, the petroleum, the natural gas, the petroleum and the natural gas are evidence of this imperfect cycle, which have trapped a huge amount of carbon, inside the earth. ठीक है, तो ऐसा पत्थर बन के ही है, ऐसा नहीं है. They can take various other forms. ठीक है, तो अलग फॉर्म भी ले सकते हैं. Okay, now let us move to the nitrogen cycle. Nitrogen cycle. Okay, so what do you know about nitrogen cycle? हम सारे किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स. न्यूक्लियस आप कहते हैं सेल में. ओके, दिस इज योर सेल, दिस इज न्यूक्लियस. Okay, you have DNA. So all the body, if you look at the living organism, all the living matter, ठीक है, तो इसमें प्रोटीन होता ही है. Every living matter has a protein, carbohydrate and fat. Okay, वो लिख के देता है ना बोतल में, जो भी आप खाने जाते हैं लिखता है कार्ब फ्री. दैट इज अ लाई. ठीक है, आप किसी चीज में से कार्बोहाइड्रेट 100% नहीं निकाल सकते. ठीक है, proportion can be different. So if you talk about this nitrogen,
16% of all proteins is nitrogen, and protein is the building block of the structure of the body. कोई भी चीज है उसमें प्रोटीन रहती है. हाँ रेनू बेटा, वेरी गुड, यू आर अवेयर अबाउट दिस. ठीक है, बट नाइट्रोजन कैसा गैस है? डज इट रिएक्ट? रिएक्ट नहीं करता है. नाइट्रोजन इज समथिंग विच इज लाइक हैव ए न्यूट्रल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, बट दिस डजंट रिएक्ट्स. ओके, एंड इफ समथिंग इज न्यूट्रल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस थिंग. ठीक है, अगर ये न्यूट्रल है इसका मतलब है कि इसे आप ऐसे ही सांस लिया और नाइट्रोजन आ जाओ, प्रोटीन बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है. ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो यू गॉट टू फिक्स दिस नाइट्रोजन. पहले ये जो फ्री में हवा में घूम रहा है इसको कहीं रोकना हो. ओके, वी कॉल इट एज फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन, और ये फिक्स करने की कैपेबिलिटी हम में नहीं है. ओके, सो ना हम इसके सारे फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं. ओके, बट कुछ फॉर्म्स हैं जिनको प्लांट्स यूज कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज समथिंग लाइक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया बना दिया गया, इसे फिक्स करके नाइट्रेट बना दिया, या फिर फिक्सिंग से नाइट्राइट्स बन गए. ओके, एंड व्हेन these are in some of these forms. Okay, now this is something that can be utilized by the plants. ठीक है, अब ये जो फिक्सिंग है this can be done by certain bacterias. कुछ बैक्टीरिया है जो इसे फिक्स कर देंगे. ओके, लाइक रेनू ने अभी राइजोबियम का नाम लिया. ठीक है, सो दैट इज बाय द प्लांट सिस्टम. ओके, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे का पार्ट है प्लांट लाइफ. ओके, एंड टू एन एक्सटेंट एटमॉस्फेयर भी करता है लाइटनिंग एक्टिविटी. स्पेसिफिकली व्हेनेवर देयर इज lightning. Okay, so it also fixes the nitrogen. Okay, and when it is fixed and when the plants can now utilize it, then it becomes available to humans or other life forms, then goes to other life forms. Okay, and when these other life forms, अब यहां आप देख सकते हैं, now when these other life forms will die, ठीक है, उसके बाद ये दूसरे लाइफ्स में जाता है. ठीक है, सो एवरीबडी इज बेसिक मूवमेंट पता है. ओके, यहां तक की कहानी क्लियर है. आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट एटलीस्ट इट इज क्लियर. अदर लाइफ फॉर्म्स में क्या है, व्हेन द लाइफ फॉर्म इज डेड, अगेन नाइट्रोजन विल disintegrate by microorganisms and free nitrogen will reach the atmosphere. So this is clear to everyone. So write down the elemental form of the nitrogen. The elemental form of the nitrogen. The elemental form of the nitrogen cannot be directly used. Great, great, सबको समझ में आया, बहुत अच्छा. फिक्स्ड बने, फिक्स का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है आस्था? जोड़ना. फिक्स करना माने जोड़ना होता है. फिक्स माने क्या है, नाइट्रोजन नेचर में उसको पकड़ के मिट्टी में ला दिया गया. प्लांट यूज करेगा, ऐसा रूट हवा में घुमाया और आ गया, ऐसा तो होगा नहीं.
ठीक है, मैंने पहले भी कहा है ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं. फिक्स्ड इज व्हाट? फिक्स कर दिया कहीं पे, टेबल को उठाया फिक्स कर दिया दीवार के कोने में, चेयर को उठाया बीच में फिक्स कर दिया, रख दिया कहीं पे, सेटल कर दिया. ओके, so the nitrogen cannot be used in its elemental form directly. The nitrogen cannot be used in its elemental form directly by most of the living organisms. All नहीं कह रहा हूं, most कह रहा हूं. ओके, क्योंकि ब्लू ग्रीन अलगे लिविंग है और वो कर पाता है, बैक्टीरिया भी लिविंग है. Cannot be used by most of the living organisms, and hence it needs to be fixed into other forms like ammonia, nitrate and nitrites, and hence it needs to be fixed into other forms like ammonia, nitrate and nitrites. Ammonia, nitrates and nitrites. Ammonia is NH4, ठीक है, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल. Ammonia, nitrates and nitrites. Ammonia, nitrates and nitrites. Ammonia, nitrates and nitrites. In order to be utilized by certain plant life, okay, the nitrogen fixation can be achieved by many different ways. The nitrogen fixation can be achieved by many different ways. By many different ways. Dash करके, by bacterias, blue green algae, atmosphere, even humans. फर्टिलाइजर फैक्ट्री में हम करते हैं, बट ये वाला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, इसमें हम साइकिल की बात कर रहे हैं, बट ह्यूमंस आर आल्सो डूइंग फिक्सिंग अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन नाउ इट इज, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट मेंशन कर देंगे. ओके, इसे मैंने क्यों किया है, अब इसमें ह्यूमंस फर्टिलाइजर वाले में डैश करके लिखिए. द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज बीइंग फिक्स्ड बाय द ह्यूमंस टुडे, the amount of nitrogen that is being fixed by humans today far exceeds what nature used to do, far exceeds what nature used to do in its nitrogen cycle, what nature used to do in its nitrogen cycle. यानी हमने नाइट्रोजन साइकिल बिगाड़ दिया है. ट्रूथ ये है कि वी हैव डिस्टर्ब द नाइट्रोजन साइकिल, वी आर फिक्सिंग अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू गेट फर्टिलाइजर्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग nitrogen has emerged as one of the threatening pollutants, and because of this thing nitrogen has emerged as one of the threatening pollutants. Disrupting the balance of nitrogen, and becoming a cause for acid rains, algal blooms, acid rains, algal blooms,
बिकमिंग ए कॉज फॉर एसिड रेन्स, अल्गल ब्लूम्स, यानी अल्गल ब्लूम कब होता है? यूट्रोफिकेशन, ओके, दिस इज यूट्रोफिकेशन, बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन, यानी न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। जब बहुत सारा न्यूट्रिएंट चला जाता है तो बहुत सारे अलगे डेवलप होते हैं, वो सरफेस को कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता है तो लेक बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। ओके, सो दिस इज यूट्रोफिकेशन भी करवाता है। ओके, नाउ फिक्सिंग को अगर हम देखते हैं, लाइक आई सेड, तो एक एक करके देखते हैं फिक्सिंग हो कैसे रही है। ओके, नाउ सर्टेन बैक्टीरियाज, फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया। ओके, so some of the bacteria are capable of fixing the atmospheric nitrogen. Okay, they fix nitrogen in form of ammonia ions. Okay, एमोनिया के रूप में करता है, आयंस को ध्यान मत दीजिए, एमोनिया बनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। इन्हें हम क्या कहते हैं, कभी कभी ये वर्ड यूज होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। इस साइकिल पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ओके, पेपर उठा के देखिए, हर तीसरे साल एक क्वेश्चन होगा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। सो कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी कहा था कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ही है। ओके, नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी क्या है, दे डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो दिस इज aerobic, that is in presence of oxygen, or it can be anaerobic. Okay, in absence of oxygen. So सबसे सिंपल सवाल तो ये पूछते हैं that the bacteria can only do fixation aerobically, तो वो लाइन गलत हो जाएगी, नहीं, anaerobic वे में भी करता है। ठीक है, it does, the bacteria fixes the nitrogen in both ways, in presence of oxygen and in absence of oxygen. Okay, now aerobic की अगर हम बात करें तो the bacteria that does it is called as azobacter. अब पूछते हैं कि which bacteria fixes nitrogen aerobically, that is azobacter, and the other one anaerobic, clostridium. So इसको ऐसे ही चार्ट फॉर्म में बना के रखने का क्या फायदा है, यूल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इजीली। रिवीजन इसको करिएगा, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओके, नाउ अब यही जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, इट इज नॉट लाइक दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, हमने जो अभी बात की है फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया में, इट इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, बट देयर आर बैक्टीरिया which live in association with plant life.
ओके, इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, रूट में रहते हैं प्लांट्स के, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सच बैक्टीरिया, ओके, इज, अब लेगुमिनस एक प्लांट होता है जो खुद कर देता है, दीज प्लांट्स की हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज नॉन लेगुमिनस। लेगुमिनस मीन्स विच कैन डायरेक्टली फिक्स, ये जो टर्म है, लेगुमिनस इज द प्लांट्स विच कैन फिक्स द नाइट्रोजन बाय देमसेल्व्स, उनको बैक्टीरिया नहीं चाहिए होते हैं, ओके। बट जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स हैं जो खुद डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, नॉन लेगुमिनस वेराइटीज जो होती है, ओके, सो इनके रूट्स में होते हैं, सो बैक्टीरिया फिक्स देमसेल्व्स इन रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। तो नॉन लेगुमिनस वैरायटी के साथ कौन सा रहता है, राइजोबियम, ओके। राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपका फिक्स करता है नाइट्रोजन को, फिर क्या है, द प्लांट टेक्स इट, देन बकरी उसको खा गई, बकरी को आदमी खा गया, दैट इज द साइकिल, ओके। सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस कि बैक्टीरिया कैसे कैसे कर रहा है। अब बैक्टीरिया भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की, अब ये बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो एमोनिया में चेंज कर रहे हैं, ओके, एंड द प्लांट इज टेकिंग। अब यही चीज की अगर हम बात करते हैं नॉन लेगुमिनस एंड लेगुमिनस प्लांट्स की, ओके, सो दे ऑल्सो कैनॉट टेक द थिंग डायरेक्टली, ठीक है। द प्लांट्स जिसकी हम डायरेक्टली की भी बात कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो टेक, सम ऑफ द प्लांट्स विल टेक नॉट एमोनिया बट दे विल टेक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, यानी प्लांट और बैक्टीरिया मिलके साइकिल चलाएंगे, ओके। एंड इन दिस टाइप नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया इज वन ऑफ दोज, ठीक है, विच इन एसोसिएशन ऑफ द प्लांट्स दे आर वर्किंग। सो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन पे वर्क नहीं करता है, ये क्या है, जो नेचर से ले पा रहे हैं, ओके। एंड नेचर से डायरेक्टली लेने का ब्लू ग्रीन अलगे की भी कैपेसिटी होती है, वो मैंने पहले ही लिखा था, ओके। दे कैन टेक इट डायरेक्टली बट नॉट ऑल बैक्टीरियाज can use nitrogen directly from atmosphere, and hence they work on ammonia, okay. So they, हाँ रेनू बेटा, okay, that is something that even I was not aware, रेनू। फ्रैंकिया, this is something that मुझे भी नहीं पता था कि this is also an example। So वन मोर एग्जाम्पल ऐड, ठीक है, ये अच्छा है कि कुछ बच्चे जो इसी सब्जेक्ट मैटर से पढ़े हुए हैं, फ्रैंकिया भी ऐड कर लीजिए, ओके। सो बॉटनी जोलॉजी वाले बच्चे कैन हेल्प अस टू लर्न मोर, सो ऐड फ्रैंकिया एज वेल। थैंक यू रेनू बेटा, सो यू आर लाइक गुड,
ठीक है, पूरा अपना एरिया है, ऐसा लग रहा होगा अभी कि बहुत मजा आ रहा है, मेरा है ये तो। ओके, सो सम ऑफ द बैक्टीरिया कैनॉट, यूज की जगह लिख लीजिए कैनॉट टर्न द नाइट्रोजन into direct from atmosphere, cannot turn the nitrogen from the atmosphere into usable form, and hence they work on ammonia. Okay, so this is, ये अब बैक्टीरिया कैसे अमोनिया पे काम करते हैं. ओके, सो अमोनिया इज कन्वर्टेड बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनस. All these names are important, like I said. So ammonia is worked upon by the nitrosomonas bacteria and it is transformed into nitrite. लेकिन ये फॉर्म जो है नाइट्राइट का, ओके, ये सीक्वेंस ही पूछ लेता है कि अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, इसमें नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया है, एंड देन नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, इसमें नाइट्रोबैक्टर काम करता है. Okay, so this is the sequence that you need to, और ये जो प्रोसेस है, this is ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ओके, दे ऐड और ऑक्सीडाइज द फॉर्म एमोनिया इनटू नाइट्राइट. इसकी ऑक्सीडेशन से फिर नाइट्रेट बन जाता है. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस दैट दे आर डूइंग, ये भी पूछ सकता है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. लाइक आई सेड, एंड बैक्टीरिया की ही हम बात कर रहे थे, तो रूट में जो रहते हैं, ओके, या इन एसोसिएशन विथ, सो हियर रूट्स ऑफ प्लांट्स और एसोसिएशन करके लिख लीजिए. कि ब्लू ग्रीन अलगे वाले में मैंने बताया ही नहीं, कि आई हैड टू टेल यू. सो रूट ऑफ द प्लांट्स इज राइजोबियम और फ्रैंकिया, जैसा रेनू ने बताया. ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगे की अगर हम बात करते हैं तो एनाबेना एंड स्पिरुलिना है. यहां दो नाम ऐड कीजिए, एनाबेना and spirulina. Okay, Anabaena and spirulina, these two names blue green algae के साथ ये associated होते हैं. It helps blue green algae. Okay, and आगे का स्टोरी तो आपको पता ही है. अब प्लांट इसके साथ क्या करता है, plants take this, okay, and they produce amino acids. ठीक है, बॉडी जो होती है लिविंग, वो डायरेक्टली इस फॉर्म को भी यूज नहीं कर सकती है. इट इज amino acid that we use. Okay, and this is amino acid is what, the building block of proteins. So when this बायो में आप ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, अमीनो एसिड एंड एवरीथिंग.
बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर पे भी क्वेश्चन आया, लेकिन वो बायो का क्वेश्चन है, इसका नहीं है, ठीक है, उसको हम बायो में कंसीडर करेंगे, बट इससे वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड्स, ओके। और इसके बाद क्या होता है, दे मूव थ्रू द हायर ट्रॉफिक लेवल्स एंड दे डाई एंड एवरीथिंग हैपेंस। Okay, so this is how it is reaching and coming back. Okay, अब नाउ ये तो आ गया बॉडी में, ठीक है, एंड विथ डेथ और द फीकस मटेरियल दैट इज देयर, अगेन डेथ वेस्ट मटेरियल, again ammonia, okay, and the process continues। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो यहां से क्या है, अब फिर से अमोनिया हो गया है, फिर से कंटिन्यूअस एक्सचेंज स्टार्ट हो गया है, ओके, द एक्सचेंज इज हैपनिंग, अब ये फिर से चल रहा है। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये तो परफेक्ट साइकिल की बात हुई कि आपने देख लिया कि बैक्टीरिया ने लिया, डायरेक्टली कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, ओके, लेगुमिनस प्लांट्स आर लाइक डायरेक्टली जो प्लांट ले रहा है, सो लेगुमिनस प्लांट्स आर द प्लांट्स विच कैन डायरेक्टली यूज द नाइट्रोजन, ओके। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस अगर हम कहें तो वैरायटी ऑफ पल्सेस दैट यू ईट, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी वैरायटीज कैसे हैं, दे आर लेगुमिनस प्लांट्स, द ग्रीन लेगुमिनस प्लांट्स, द पल्सेस वैरायटी, दे कैन डू दिस थिंग, ओके। बट ये परफेक्ट साइकिल का पार्ट है, आप लेगुमिनस मानिए या नॉन लेगुमिनस प्लांट्स मानिए, ओके। बट इफ यू टॉक अबाउट सम द नाइट्रोजन दैट गोज इनटू द ओशन, ठीक है, यहां एक इम्परफेक्ट साइकिल का पार्ट भी होगा, ओके। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का जो फॉर्म है, दे many of these forms changes into insoluble matter, okay, so insoluble matter में ये चेंज हो जाता है, okay, becomes part of sedimentary cycle, एंड इफ इट गोज इनसाइड द ओशंस तो फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये गायब है, ओके। बट दे आर सम स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, इनको अब और कोई चीज चेंज नहीं कर सकती है, ओके। सो ये जब ये बन जाते हैं तो देयर इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, found in the ocean is Pseudomonas, okay, it again converts into nitrates, nitrites, okay, but it may take much more time। if Pseudomonas is not available वो कभी वापस नहीं आएगा, okay, but sedimentary पे भी अगर Pseudomonas bacteria is there it will come back। सो नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स को वर्क करके ये एलिमेंटल नाइट्रोजन बना देता है, ओके, एंड ईच ऑफ द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ओके। अब थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट
the thunderstorms. So thunderstorm is like जो चार्ज उसमें प्रोड्यूस होता है, ओके, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स the elemental nitrogen into ammonia and nitrates. Okay, this is elemental nitrogen, because when the lightning strikes through it, so it converts into ammonia and nitrates, it falls to the ground. ठीक है, and ये जो होते हैं, how they fall to the ground, they reach the ground in the form of precipitates. पाउडरी फॉर्म में, बहुत ही फाइन पाउडर्स, ओके, बट दिस फाइन पाउडर की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको बारिश दिखाई देने लगेगी, ओके, दे आर सो फाइन दैट यू कैन नॉट see them, okay, and these precipitates may also act as nuclei for the water or ice to form, उसके साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है. So everybody is clear with this, and these can be then again same process फिर से use कर लेते हैं plants, okay. So everybody is clear with this? Today this comment section is like not working at all, I guess. ठीक है, the page is itself, it is not getting refreshed, gone. Just give me a moment. I cannot see anything of. Okay. Govind beta, very good morning. Okay. हाँ पूजा बेटा, you can talk about blue, green, algae and nostoc. They are varieties which can use that. Okay. So this is something that all of you need to remember. सबसे important cycle यही था, okay. रेनू बेटा ठीक है, मैं खोज के भेज दूंगा. Now all the comments are like, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी PYQs आई विल शेयर, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें एक दो फैक्ट हो सकता है और मिल जाएंगे, ठीक है. सो ऑल द पी वेराइटीज, लेंटिल्स, लेगुमिनस प्लांट्स, उनके बारे में थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी नाम पूछा हुआ है उसको भी देख लीजिएगा, ओके. एंड इवन लेगुमिनस प्लांट्स में अगर आप देखेंगे पी की वैरायटी, तो रूट सिस्टम में बैक्टीरिया होता है, ओके, राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरिया को ऐसा, ऑल द लेग्यूम्स हैव नेचुरली राइजोबियम विथ इट, ठीक है. लेग्यूम्स में आपके राइजोबियम का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके, रूट नेटवर्क में रहने वाले में. बट इवन सम ऑफ द वेराइटीज विच are not in a symbiotic relationship, they have the potential of doing that, okay. So nitrogen cycle is an important cycle. Make sure that you are remembering each and every part of it, okay. Now we'll move forward with this thing to another cycle, which is going to be a sedimentary cycle, phosphorus cycle.
phosphorus cycle. Okay, sedimentary cycle है ये. Phosphorus cycle is a sedimentary cycle. Okay, and phosphorus doesn't take the atmospheric route. phosphorus का जितना भी साइक्लिंग है that is through sedimentary route. Even you can think of, अगर पूछा जाता है कि which some of them which do not use the atmospheric cycle and only sedimentary cycle, तो आपको याद रखना चाहिए phosphorus, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ देम. लेकिन हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पढ़ना नहीं है, बट दे आर ओनली यूटिलाइजिंग सेडिमेंट्री साइकिल. ओके, so these are some of the major ones which are only associated with the sedimentary cycle. ठीक है. लेकिन अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है. दो मेजर पार्ट ऑफ द सल्फर इज इन द सेडिमेंट्री साइकिल. हम इसके अंदर ही सल्फर साइकिल पढ़ेंगे, बट सल्फर कैन टेक अदर रूट्स एज वेल. बट फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सेडिमेंट्री साइकिल में ये तीन बेसिक माने जाते हैं. ओके, सो फॉस्फोरस का क्या यूज है, पहले तो ये बताइए. व्हाट इज द रोल ऑफ फॉस्फोरस? एनीबडी हु हैव एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली फॉस्फोरस डज? If there were no phosphorus, there can never be the rooted plants. ठीक है, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि दिस इज समथिंग दैट ओनली कम्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स. ठीक है, तो इनिशियल जो सरफेस बना था वहां वेदरिंग नहीं हो रही थी. ओके, देयर वाज नो वेदरिंग हैपनिंग. सो द लाइफ फॉर्म दैट इनिशिएटेड फर्स्ट, दे वर फ्री फ्लोटिंग अल्गल. ठीक है, ब्लू ग्रीन अल्गे, एंड दिस इज, इसी से शुरू हुई थी लाइफ. ओके, हाँ, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, द रोल दैट इट प्लेज इन ह्यूमन बॉडी. ठीक कह रहे हैं आप. लेकिन जो रूटेड प्लांट्स, बिग प्लांट्स एंड ऑक्सीजन, सिर्फ अलगे से ऑक्सीजन फ्लडिंग हो जाता है ऐसा नहीं है. until and unless big plant life was there, more photosynthesis could have not taken place. ठीक है, नहीं तो ओशन में तो बहुत अलगे हो. हम अमेजन और कॉन्गो बेसिन में जो फॉरेस्ट है उसको बचाने की बात ही नहीं कर रहे होते. सो द फॉस्फोरस इज इंपॉर्टेंट फॉर रूटेड प्लांट्स. ठीक है, तो रूट जो नेटवर्क है, भले ही फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हो, जो रूट आया लैंड पे, जो रूटेड प्लांट्स आए, ओके, द फॉस्फोरस इज रेस्पॉन्सिबल for the growth of free floating plants, रूट जिनके हैं, and the rooted plants that helped in flooding the atmosphere with oxygen. Okay, so this is the biggest contribution of phosphorus. जो लाइफ फॉर्म आप आज यहां देख रहे हैं, ओके, हाँ रेनू बेटा, विदाउट फॉस्फोरस फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस. ठीक है,
सिर्फ कीमोसिंथेसिस होता रहता, ओके, एंड we would not have found these bigger life forms without phosphorus. So it is responsible for photosynthesis. ओके, ये सबसे बड़ा रोल है और ये साइकिल बहुत इजी है. ओके, फॉस्फेट कहीं और मिलता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज इन रॉक. साइकिल इज वेरी सिंपल. फॉस्फेट इन रॉक्स, it undergoes weathering. Okay, now phosphate available to plants. The roots take it. Okay, so now phosphorus is in plant. Now moves to next trophic levels. Okay, when they die, it comes back. Okay, and phosphorus is like what? एक ही प्रोसेस है वेदरिंग करके, जहां वेदरिंग होगी वहीं अवेलेबल होगा. इसका मतलब है कि अगर ये पानी में गया, इफ इट गोज डाउन द ओशन, जब ये प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जाएगी कभी फ्यूचर में, फिर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तभी वापस आएगी. ओके, सो फॉस्फोरस is one thing that is available at those places where the weathering is happening. Rest any other process cannot bring phosphorus in any of the areas. Okay, so this is most simple cycle. तो ये जो वापस आता है, ये मिलियंस बिलियंस ईयर्स के बाद आएगा, जब प्लेट्स नीचे जाके कंज्यूम होके अगेन वॉल्केनिक इरप्शन, ओके, देन ओनली इट विल कम बैक. So write down, the main reservoir of phosphorus is earth's crust. The main reservoir of phosphorus is earth's crust. The main reservoir of phosphorus is earth's crust. The phosphorus is found in the form of phosphate in the rocks. The phosphorus is found in the rocks in the form of phosphates and becomes available to the plants for uptake, and becomes available to the plants for uptake after the weathering of the rock. After the weathering of the rock, or when it gets eroded, when it gets eroded. And when it gets eroded and enters water bodies, and when it gets eroded enters water bodies. ठीक है, तो इसीलिए प्लांट पानी में जो दिखाई देते हैं, ओशन में भी दिखाई देते हैं, उनका सोर्स क्या है? वेदरिंग ऑफ द रॉक ही है. ठीक है, इफ दिस phosphorus reaches, if this phosphorus reaches the oceans, if the phosphorus reaches in the oceans, it accumulates in the ocean in the form of insoluble deposits.
It accumulates in the form of insoluble deposits. It accumulates in the form of insoluble deposits. Accumulates in the form of insoluble deposits. And will get again exposed on the crust after millions of years. After millions of years. Okay, so that is the most complicated cycle. एक बार ये अगर ओशन फिर से पहुंचता है, so it will take a lot of time to come back. Now the sulfur cycle. Now what is the role of sulfur? Okay, like I said, ये क्या है? It is not simply sedimentary cycle. Okay, it is mostly sedimentary. Mostly sedimentary, but two forms in gaseous cycle. ठीक है, इसके दो फॉर्म कैसे हैं गैसियस साइकिल में? किसी ने बताया नहीं रोल ऑफ सल्फर? कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड. Okay, sulfur dioxide and hydrogen sulfide. These two forms. फिर से कमेंट में दिक्कत आ रही है? The blood stream. Okay, हाँ भव्य, सल्फर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इट इज वन ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, आपका न्यूरल फंक्शन अफेक्ट होता है अगर सल्फर ना हो सही मात्रा में. स्ट्रोक जो आता है, ठीक है, if the balance of hydrogen sulfide is not proper in the body. Okay, हाँ रेनू बेटा, वेरी गुड. ओके, सो दिस इज क्लोरोफिल, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. सो बेसिक टू लाइफ है ये चीजें. ओके, इट इज मोस्ट बेसिक फंक्शंस में. ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसा होगा प्लांट का, सल्फर इज एसेंशियल. हाँ रेनू बेटा, सो प्रोटीन सिंथेसिस, लाइक भव्य यू ऑल्सो सेड, सो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका रोल है, तो इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, न्यूट्रिएंट. हार्ट स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा आजकल आ रहे हैं, सो हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, रॉटन एग्स, आपने देखा होगा जब एग सड़ जाते हैं तो जो स्मेल आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आती है, द पंजेंट स्मेल दैट यू एक्सपीरियंस. ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड
हमने डिटेल में इसके बारे में तो देखा है पहले ही, ओके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ही। सो दिस इज मोस्टली सेडिमेंट्री, बट टू फॉर्म्स जो है, तो पहला क्वेश्चन तो इसी में पूछ लेगा कि कौन कौन से हैं, ओके। अब सल्फर पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई गई है, ठीक है, यू आर अवेयर अबाउट ज्योग्राफी। सो हैव यू हर्ड ऑफ सर्टेन मटेरियल, ओके। कोल का क्या है, सल्फर, इन कोल के ऊपर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एनी सॉइल विच इज लाइक ऑयल, नॉट सॉइल, ठीक है, जितने भी ऑयल के फॉर्म है वहां पे क्या है कि सल्फर है। सो अगेन द रिजर्वायर फॉर सल्फर इज लैंड ओनली, okay, but this its huge quantities are also associated with the organic matter, ठीक है। पेट्रोलियम हो या कोल हो, किससे बना है, ऑर्गेनिक मैटर से है। तो बहुत सारा सल्फर ऑर्गेनिक मैटर की देन है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द सल्फर की अगर हम बात करें, इट एंटर्स थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से क्या है कि सल्फर एंटर्स, ओके, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। And this is how the sulfur was added to the earth, okay। आप कोई भी कंबस्टन कीजिए, किसी चीज को जलाइए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, सल्फर डाइऑक्साइड विल गेट एडेड टू द एटमॉस्फेयर, ओके। एंड अगर रॉक में से आ रहा है तो मोस्टली सेडिमेंट्री जब हम कहते हैं तो सल्फेट फॉर्म में होता है, ओके। अगर गैसियस फॉर्म में होगा ड्यू टू कंबस्शन, जो कि हमें नेचर में वापस मिलता है, एंड द सोर्स इज ऑर्गेनिक मैटर प्लस वॉल्केनिक इरप्शंस, ओके। एंड रॉक से क्या है, सल्फेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट इट इज फाउंड। एंड देन सिंपल सा है, प्लांट मेटाबोलाइजेज इट, देन इट मूव्स टू द ट्रॉफिक लेवल। सेडिमेंट्री साइकिल का क्या है, वेदरिंग इज द सोर्स, सेडिमेंट्री साइकिल्स में वेदरिंग जैसे ही होगी तो सम फ्री फॉर्म विल बी अवेलेबल विच द प्लांट्स कैन अपटेक। बट आपको यह भी समझना है कि ह्यूज अमाउंट्स कम डायरेक्टली ऑल्सो फ्रॉम द लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। सल्फर का एडिशन आपका लाइफ फॉर्म माने पास्ट लाइफ फॉर्म्स, वेजिटेशन एंड एवरीथिंग विच वाज सबमर्ज्ड, कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, ओके। एवरी एरिया, ओके, इफ यू लुक एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड सल्फर विल फॉर्म, ठीक है। सल्फेट्स क्या है, जमा होकर वहां सल्फर का डिपोजिशन होगा। द एक्सक्रीटा दैट पीपल प्रोड्यूस, सल्फर उसमें भी होगा, ओके। सो सल्फर इज एडेड एंड साइकल्ड इन द मोस्ट विविड फॉर्म्स, ओके। मेनी सोर्सेज, बट टेरेस्ट्रियल वाले का हमेशा याद रखेंगे, ये जो वेदरिंग प्रोसेस से रिलीज हो सकता है उसमें बहुत टाइम लगेगा हमेशा, ओके। सो राइट डाउन। अब मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं कि इट इज मोस्टली सेडिमेंट्री एंड टू फॉर्म्स ऑफ गैसियस, वो यहां लिख दिया है, इसको ही नोट कर लीजिए, इसके बियॉन्ड लिखवाऊंगा, ओके। द सल्फर साइकिल विच एंटर्स द पार्ट ऑफ द सल्फर साइकिल which enters the part of the sulfur cycle which enters the atmosphere, which enters the atmosphere, happens through the volcanic eruptions, happens through the volcanic eruptions, okay, comma, the gaseous release during decomposition, ठीक है। जैसे मैंने कहा अंडा सड़ता है तो क्या है,
हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल आ रही है, तो वो क्या है? द स्मेल इज बिकॉज वो गैसियस फॉर्म में एंटर कर रहा है एटमॉस्फेयर में. ओके, व्हेन द गैसेस रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय डिकम्पोजिशन, when gases release in the atmosphere by decomposition or during combustion of the fossil fuels, and a lot of sulfur is also released from the surface of the ocean, and a lot of sulfur is also released from the surface of the ocean, full stop. ठीक है. The sulfur in the form of sulfates, change the para and write, the sulfur in the form of sulfates is made available to the plants by the process of weathering and erosion. The sulfur in the form of sulfate in the rocks, is made available to the plants, by the process of weathering and erosion. And then moves through the various trophic levels. Full stop. This sulfur again goes back to the sediments due to excretion and decomposition. ओके, सो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो गैसियस साइकिल में इसका कौन कौन सा है, मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड. द सेकेंड वन इज जो मैंने लिखवाया है कि थ्रू दिस सरफेस ऑफ ओशन. ओके, सोर्सेस क्या क्या है गैसियस साइकिल में. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? लेट मी नो. लाइक आई सेड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो इस पे क्या है कि थोड़ा भी आपको लाइटली नहीं लेना है, इसको ढंग से पढ़ना है. ओके, यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रॉपरली. ऑल क्लियर? यस, नो, कुछ तो बताइए. नाउ विल लुक एट सर्टेन टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी है जो वो पूछते हैं. तो दिस वाज अ बिग टॉपिक, बट एवरी नाउ एंड देन विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द terms. Okay, so I keep adding these terms in the middle. The reason is very simple कि एक दिन में overburden ना हो कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी का ही लेक्चर ले लिया मैंने, तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे. ग्रेट. ठीक है, so now we'll look at some of the terminologies that can be asked. ठीक है, so prelims related, जो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे. ओके,
some of the terminologies वो देख लेते हैं, ठीक है. One major topic we have covered. अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे हमने देखा है कि बहुत बार सवाल पूछे गए हैं. ओके, aquatic organisms. Okay, so there are certain definition type of question आते हैं, या what is this type का, बिल्कुल memory based questions. Okay, so aquatic organisms we have seen that different types have been asked. So सबसे आसान वर्ड तो है प्लैंकटन. ये सभी को पता है, ये बार बार यूज होता है. ओके, फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन मैं बार बार कहता हूं, तो ये तो सबको पता है. सो व्हाट इज अ प्लैंकटन? प्लैंकटन क्या होता है? फाइटो प्लैंकटन मैं कहता था तो सब लोग ठीक है कर रहे थे, तो ये प्लैंकटन है क्या? What is a plankton in the aquatic ecosystem? ठीक है, इसके दो फॉर्म है. अगर वो छोटा प्लांट है तो हम फाइटो कह लेते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है. जू प्लैंकटन कहते हैं मैंने, वो एनिमल होगा. ओके, बट किस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं? किंगडम की हम बात नहीं कर रहे, हम टर्म्स पे बात करेंगे, हम बायोलॉजी पे जाएंगे ही नहीं. ओके, भव्य बेटा अगर ये फ्लोट कर लेते हैं, ओके, ठीक है, दे फ्लोट, ठीक है, फ्लोट करते हैं, बट दे कैनॉट मूव बाय देयर ओन. हाँ रेनू बेटा, योर डेफिनेशन इज मोर एप्ट. भव्य, इनमें लोकोमोटरी फंक्शन नहीं होता है. ओके, ये तैर नहीं सकते हैं, दे आर नॉट स्विमर्स. ओके, दे जस्ट कैन फ्लोट. प्लैंकटन्स कैन फ्लोट ओनली. ओके, सो एनी प्लांट, यही फीचर पूछेगा, डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि प्लैंकटन है, नेक्टन है, न्यूटन है. ओके, सो they'll ask about this. They have limited locomotory function and they float and move along the movement of the water. Okay, like currents etc. पानी में जब मूवमेंट होगी तो ही ये मूव कर पाएंगे. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी. दूसरा क्या है? मोस्टली दे आर माइक्रोस्कोपिक. नॉट ऑल, मैंने मोस्टली लिखा है, बहुत छोटे होते हैं ये. ओके, सो व्हेन दे आर इन कॉलोनीज देन एंड देन ओनली दे विल बी विजिबल. ये तभी विजिबल होंगे जब इनकी कॉलोनी बड़ी हो जाएगी. या एक को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना होगा. जब ये लाखों हो जाते हैं तो हमें क्या है, ऐसा लगता है जैसे घास पड़ी हुई है पानी के ऊपर, गुच्छे की तरह. ओके, एंड विंड दे आर ऑफ टू टाइप्स. फाइटोप्लैंक्टन जिसे आप अलगे कहते हैं, एंड दे कैन बी जू प्लैंक्टन. ओके, सो फाइटोप्लैंक्टन में आपका सबसे कॉमन फॉर्म अलगे है. ओके, और जू प्लैंक्टन जब हम कहते हैं, सम ऑफ द एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ,
बचपन में पढ़ा होगा, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ऐसे. So this is okay. So this is plant and this is animal. Okay. Now similarly, जैसे ये आपने plankton है, the next word that we'll be talking about is necton. Necton, have you heard of this? Plankton and necton. अब नेक्टन जब हम कहेंगे तो ये सिर्फ एनिमल्स हैं. स्विमर प्लांट तो हो नहीं सकता है कि चलो तैर के आते हैं. ओके, सो दे हैव लोकोमेट्री फंक्शन. ओके, दे कैन मूव इन द वाटर. सो ये याद रखना है. बहुत लोग क्या है कि प्लैंकटन का जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, तो जू नेक्टन, फाइटो नेक्टन ऐसा दिमाग में बिठाते हैं. दिस इज नॉट, दे आर स्विमर्स. सो दिस इज पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम. ठीक है, ये एनिमल किंगडम का पार्ट है. ओके, आस्था बेटा आपका कुछ छूट गया है, जल्दी लिखेंगे, ये बहुत कॉमन चीजें हैं. ओके, आई जस्ट वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. हाँ पूजा बेटा, सिंगल सेल्ड, ये माइक्रोस्कोपिक का मतलब ही, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो सिंगल सेल वाले ही है. ठीक है, मैंने माइक्रोस्कोपिक वर्ड किया है, आप सिंगल सेल्ड भी लिख सकते हैं. आस्था हो गया है, मान लेते हैं हो गया है. ओके, दीज आर नेक्टन्स आर स्विमर्स. ओके, तो इनका मेन यही है. एंड मोस्ट ऑफ द स्विमर्स, इनकी अगर लेकिन लेंथ या साइज की बात करें तो मोस्टली अराउंड 2 mm. ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, ये बड़े नहीं होते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में नहीं कह रहा हूं मैं. ओके, so they are relatively large and powerful. Okay, लेकिन कॉमन पार्लेंस में अगर हम देखते हैं तो बायोलॉजिकल वे में स्विमर्स एवरीवन, सो रेंजिंग फ्रॉम 2 mm टू इवन ब्लू व्हेल, ये भी नेक्टन है. अभिषेक बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, जब आप किंगडम की बात करते हैं, ओके, सो इवन ब्लू व्हेल इज इट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, ओके, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अराउंड 2 mm ओनली विच आर स्विमर्स. ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स नेक्टन इज इवन ब्लू व्हेल. ठीक है, तो अगर एक जनरल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए नेक्टन, देन यू हैव टू कंसिडर ऑल द एनिमल्स विच आर स्विमर्स. ओके, जितने स्विमर्स हैं, ब्लू व्हेल भी उसमें आ जाएगी. Okay, but when we are doing the study of an aquatic ecosystem like pond, okay, निशांत, a very good morning. तो आप लोग काफी ज्यादा लेट आ रहे हैं. ओके, कुछ लोग काफी ज्यादा लेट आए. सो एवरीबडी हैज टू बी क्लियर विद दिस थिंग. टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. जब तक आप शब्दों को क्लियर नहीं समझेंगे. ओके, सो राइट डाउन, नेक्टर्न्स आर स्विमर्स हु आर स्ट्रॉन्ग इनफ. The nectarines are swimmers who are strong enough to move against the
water movement like currents, against the water movement like currents, against the water movement like currents. Okay, next is benthos. Now what is this? एंड ऑल दोज हु आर लाइक लेट, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जरूरी है कि आप शुरू से देखें, ठीक है, बिकॉज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जिसकी अच्छी है वो पास हो जाएगा प्रीलिम्स में बिना दिक्कत के। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इकोलॉजी पढ़ के चले गए। इसका मतलब यह है कि दूसरे सब्जेक्ट में वीक होंगे तब भी बच जाएंगे। नाउ व्हाट इज benthos? Which live at the bottom of the water mass. Okay, live at the bottom. शेप का 2 mm हो सकता है क्या? भव्य साइज होगी ना 2 mm से लेके ब्लू व्हेल क्या है, बहुत बड़ा। ओके, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज 2 mm, बट रेंज अगर आप कहेंगे तो 2 mm टू एज बिग एज ब्लू व्हेल। जो शब्द यूज कर रहे हैं बेटा उस पे कॉशियस रहेंगे। ओके, शेप और साइज दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। So benthos, whichever live at the bottom. Okay. Now another word, Newston. ये तीनों पॉपुलर थे। Now tell me what is Newston? What is a Newston? Newston is anything which is in the air-water interface. And when we say interface, वो भी एयर वाटर का मतलब क्या है? फ्लोटिंग प्लांट। इसका रूट क्या है? नीचे रहता है, एंड द प्लांट इज above. Okay. So a floating plant is a Newston, जो इंटरफेस पे रहते हैं। ओके, दे विल बी कॉल्ड एज Newstons। ठीक है, सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन द इंटरफेस, जितने भी लिविंग फॉर्म है एयर वाटर इंटरफेस पे रहने वाले, जिनका कुछ हिस्सा पानी के अंदर है कुछ बाहर है। ओके, अब ऑल दोज, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे आपने, वाटर बॉडी देखा है, उसके ऊपर कुछ कीड़े रहते हैं जो मजे में घूम रहे होते हैं पर उड़ते उड़ते नहीं है। ठीक है, मजे में ऐसे ही जा रहे हैं। दे कैन फ्लाई बट दे लिव ऑन द सरफेस। सम ऑफ द बीटल वेराइटीज स्पेशली आपने देखा होगा। सो दे आर ऑल्सो न्यूस्टन, क्योंकि उनका पांव क्या है, पानी के सरफेस पे होता है, एंड दे आर सो लाइट कि वो डूबते नहीं है। ओके, सो दे आर न्यूस्टन विच लिव इन द interface. Okay, so everybody is clear, क्योंकि टर्म्स पे आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज पेरीफाइटन। पेरीफाइटन, ओके, दे आर नॉट पॉपुलर टर्म्स। ठीक है, पेरीफाइटन इज एनीथिंग, ओके, विच इज अटैच्ड टू सम अदर लाइफ फॉर्म। ठीक है,
पानी में जहां भी कोई प्लांट है इसके ऊपर चिपक के रह रहा है. ओके, इट इज अटैच टू द सरफेस ऑफ सम अदर लाइफ फॉर्म. ठीक है, इसके स्टेम्स में हो, लीव्स जो अंदर पानी के कुछ हैं उस पे हो, ऑल ऑफ देम आर पेरिफाइटन. सो राइट डाउन, periphytums are all the organisms. Periphyton are all the organisms which are attached to a plant, to a plant's leaves or roots. Leaves or roots, or some substance emerging out of the water. ठीक है, कोई रॉक है मान लेते हैं, some substance emerging out of the water. ओके, या कोई शिप डूब गई, substance emerging out of the water. ठीक है, तो many of the algae varieties they do it. वो algae क्या है कि सिर्फ पानी के सरफेस पे जमा होगा ऐसा नहीं है. Many of the algae varieties they stick themselves with the body, but they are like what, यहां से स्टार्ट होगा यहां तक आएंगे, हर जगह मिलेगा वो. ओके, सो इट कैन प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी बोथ प्लांट और एनिमल. ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े कैसे होते हैं, वो ऐसे चिपक के रहते हैं दूसरे प्लांट लाइफ पे या दूसरे सब्सटेंसेस पे. तो दीज टर्मिनोलॉजीज इफ यू लुक पूछे गए. ठीक है, बहुत सिंपल है, बट व्हेन इट कम्स इन द क्वेश्चन पेपर मेनी a times we get confused. Okay, so tomorrow we'll start with a new topic, and such small terminologies related things will keep doing till we end this thing, so that you can be aware about more and more of it. एक दिन में आप सारे ऐसे टर्म्स याद करने का सोचेंगे वो कभी नहीं हो पाएगा. Okay, so we'll mix a little up where some understanding is required and some of the where सिर्फ टर्म ही है. ठीक है, because overall thing like a cycle, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या है, ब्रेन उसको मैप कर लेता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ. सो यूल रिमेंबर ऑल द स्टेजेस इजीली, वहां आसान है याद रखना. बट आप किसी डिक्शनरी को चाहें कि याद कर लें, दैट इज डिफिकल्ट, बिकॉज द आइडिया इज शिफ्टिंग प्रिटी क्विकली. ओके, एंड ब्रेन फेल्स टू प्रोसेस द थिंग, क्योंकि हर चीज अलग लग रही है. And this is what you'll definitely experience when you'll write the mains. जब हर 6 मिनट बाद आप एक नया सवाल पढ़ रहे होंगे. Okay, and those who will not practice, 8वें 9वें क्वेश्चन में उनका पेपर खत्म हो जाएगा. Okay, और प्रीलिम्स में भी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है. Why everybody asks you to write test or solve PYQs, so that your brain learns how to switch from one topic to another topic, and that is essential part of your preparation. ठीक है, तो वो करना टफ है, लेकिन आपका नेचर ऑफ एग्जाम ही ऐसा है कि you'll have to achieve this thing. Okay, and for those who do not have PYQs, I'll try to share it, but do remind me once again. Renu, you have to drop me a message so that I can do that. ठीक है, ऑन माई टेलीग्राम चैनल. अब तो आखिरी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सम ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट माई चैनल. ओके, ऑल ऑफ यू आर अवेयर. सो अगर कोई और दिक्कत होगी तो कल हम इस पे बात करेंगे. ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर ओनली. मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग दीज पॉइंट्स एंड गो थ्रू PYQs. मैं बार बार कहता हूं, ओके,
और मैंने आपको बहुत हजार बार ये बात पहले भी कही है कि इफ समबडी इज टेलिंग यू कि PYQ रिपीट नहीं आता है, वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सबको पता होगा तो बहुत लोग क्या है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि प्रीलिम्स के कोर्स में एडमिशन लेगा कि नहीं बच्चा, ओके उसके लिए अपना कैरियर खराब नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे 4-4 अटेम्प्ट के बाद मिले हैं रो रो के कि सर हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। बिलीव मी, I just wanted them to make this change and they cleared. लेकिन पढ़ने का मतलब क्या है, थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, ओके मतलब 4 ऑप्शन है तो चारों के बारे में सोच पाने की क्षमता होनी चाहिए, जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 इज करेक्ट तो 1 के बारे में ही पढ़ लिया, बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू विल गेट दिस, फिर आप रोएंगे कि ये तो पूछा था मैंने, रिपीट नहीं, इसके बारे में पढ़ लिया होता तो अच्छा है। So PYQs, whenever you are using, try to know about all the 4 options. So your coverage is so extensive that you'll not fail in prelims. ठीक है, 99% जनता जो चाहती है IAS बनना, वो इस स्टेज में या तो जाती नहीं है या जाके फेल हो जाती है। करेज नहीं होता है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जाते जाते 5 लाख पहुंच जाते हैं, इसमें से सिर्फ 4 लाख दूसरे सेशन में CSAT देने जाते हैं, जबकि डर ज्यादा CSAT का है लोगों को, ठीक है। लेकिन ये इसी में पहले सेशन में GS फर्स्ट सेशन में ही इतना खराब कर देते हैं कि CSAT तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज बिकॉज यू लैक द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ फ्रॉम वेयर। इफ यू डू दिस, आई कैन गारंटी यू कि 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 15 क्या है, यू नीड टू एलिमिनेट। थोड़ा अगर आपने पढ़ा हुआ है, एलिमिनेट करके हो जाए, यू विल क्लियर द पेपर, ओके। एंड करंट अफेयर्स एंड ये वो करके भी तो थोड़ा जाते ही हैं सभी। तो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। डोंट डू ए मिस्टेक बिकॉज समबडी टोल्ड कि ऐसा नहीं है। वेरीफाई आप में करने की क्षमता नहीं है। कोई बोल देगा कि लक्ष्मीकांत से आया तो सब रगड़ के लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, सुभाष कश्यप को मान लेंगे कि उसमें कुछ है ही नहीं। द प्रॉब्लम इज विथ दिस थिंग। अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस होता और आप खुद चेक कर लेते, पढ़ के देख लेते, तो आप वैसे ट्रैप में कभी जाएंगे ही नहीं। तो सेव योरसेल्फ फ्रॉम सम ऑफ द ब्लंडर्स दैट पीपल हैव डन एंड दे हैव लॉस्ट ईयर्स, लॉस्ट कॉन्फिडेंस in themselves. Don't do that. Okay, so we'll again start from here tomorrow. So everyone stay healthy, stay blessed. Thank you.